Es ist so eine Geschichte. Warum sind hier Länder Kulturhauptstädte Europas? Kulturhauptstadt, das ist ein sehr wichtiger Begriff. Begriff का मतलब Konzept in Europa. Sie haben irgendwann entschieden, dass wir jedes Jahr eine Stadt als Kulturhauptstadt auswählen. Kulturhauptstadt means यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हर साल किसी सिटी को कल्चरल कैपिटल सिटी डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोशन मिले, लोग वहाँ पे बाकी यूरोप से और वर्ल्ड से घूमने आए, क्योंकि उसका हम लोग प्रचार भी तो करेंगे, फिर बाकी लोग आएंगे एज ए टूरिस्ट, तो उस सिटी को बहुत बेनिफिट भी हो जाएगा। एंड ऐसे लाइव होंगे, आपस में लोगों का इंटरेक्शन होगा, तो दे विल ट्राई टू लर्न द कल्चर एंड पीपल एंड देन दैट इज हाउ गुड फॉर द सोलिडारिटेट। लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो फिर जानना चाहते हैं, मिलते हैं लोगों से। Also dann hat man eine positive Attitude, so lernt man eigentlich richtig einander kennen. Das wäre vielleicht wunderbar. So haben sie irgendwann entschieden. So, sie haben Lust auf Europa. Sie hat einen Text geschrieben. Lust auf. Lust haben auf. Are you interested in Europe? Sie haben Lust auf Europa? Fragezeichen. Das ist auch ein Aussage. Statement भी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो कभी कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क भी हो जाता है। तुम आ रहे हो, तो ये तो स्टेटमेंट है, तरीके से या टोन मार्क्स, तुम आ रहे हो ना, तुम आ रहे हो, सेंटेंस वही है, फिर भी हो जाता है ना ऐसे। सो बेसुchen Sie eine Kulturhauptstadt. If you are coming to Europe, better you should visit a cultural capital city of Europe. And these all are cultural capital cities till now. Dublin 1991, maybe 1991 में डबलिन को बनाया गया। Und sometimes, also vielleicht wurden manchmal auch mehrere Städte als Kulturhauptstädte ausgewählt. Sometimes same year में 2-3 को भी बना दिया। So, sie sagt etwas, das ist wirklich sehr schön. Also hier sehen Sie, vielleicht irgendwann ist das Kulturhauptstadt. Die Menschen sehen bunt aus. Bunt means colorful. People are here. Auf dem Foto sehen Sie, viele Menschen sind da. Es gibt ein Gefühl, dass es gibt vielleicht also Fest oder sowas. Menschen sind auf der Straße, so viele. Normalerweise sind das nicht so viele. Gesperrte Autobahn, Highway block हो गया, so viele Menschen sind da bei Essen. By means Essen खाना तो नहीं है, Essen is the city, by is near, so near Essen city on the highway, so viele Menschen. Warum? Und das ist dann hier die Antwort. Ja, Essen is the name of the city in Westdeutschland. Okay, so Prachi, willst du das lesen bitte? Bitte, von hier. Aha, so Zara is going to explain one attractive concept today. Yeah, bitte. Heißt es. Verschiedene Länder und Kulturen besser kennenlernen. Danach hatten noch viele andere
Europacific Großstädte Identität. Zum Beispiel Berlin. Kurz vor dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1988, ein Jahre später war Weimar Kulturhauptstadt. Die erste deutsche Kleinstadt. Die letzte deutsche Kulturhauptstadt war auf Wesel. Weil es eine ganze Region war, das Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, okay. Ruhrgebiet. Speziell. Die Stadt Essen war der Vertreter für 53 Städte in Ruhr 2010 Projekt. Okay, stopp. Also hier 1985 war Athen die erste Kulturhauptstadt. In the year 1985, Athens was the first cultural city of Europe. Seit 2005 heißt es Kulturhauptstadt. So earlier they used to call it cultural city of Europe. Now they are saying cultural capital city of Europe. So और उसको अच्छा लगे, कल्चरल कैपिटल सिटी, पूरे यूरोप का कल्चरल कैपिटल है ये वाला सिटी इस साल के लिए. Das Ziel war, and what was the purpose? Dass sich Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen besser kennenlernen. People from different culture and countries, they come there and they come to know each other. आप लोगों को जानते हो तो आप उनसे प्यार करते हो, है ना? और आप नहीं जानते तो दूसरी कल्चर है तो आप मतलब झगड़े भी हो जाते हैं कई बार. मान लो मैं केरला के लोगों को जानता नहीं और कभी कोई बात हुई तो फिर आप झगड़ने को तैयार रहते हो, लेकिन आप बहुत सारे आपके केरला में फ्रेंड्स हैं और कभी कोई बात भी हुई तो आपको लगता है अरे ये भी तो अपने ही लोग हैं, ऐसे करके फिर उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है आपका. सो दैट वाज ऑल्सो रीजन. मीन्स यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन में भी 27 कंट्री हैं, तो उनके भी आपस में रिलेशन अच्छे हों तो कल्चरली इस तरह से एक तरीका हो सकता है, ये सोचा उन्होंने. सो Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen besser kennenlernen. Danach hatten viele andere europäische Großstädte diesen Titel. So in the beginning Athens was the first city, but then many other cities also got this title. Zum Beispiel Berlin, kurz vor dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1988, कि बर्लिन की जो वॉल गिरी थी 1989 में, उससे थोड़े टाइम पहले ही बर्लिन को इन्होंने कल्चरल सिटी बनाया, थोड़े पहले. क्या बर्लिन की वॉल गिर गई? हाँ, वॉल गिर गई, ऐसे नहीं छत गिर गई, इस तरह का कोई मामला नहीं है, चिंता मत करो. वो 2 कंट्री थे, पहले कंट्री बना दिए थे, बाउंड्री झगड़े हो गए थे तो 2 कंट्री बन गए थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, तो वापस से एक हो गए. बीच में वॉल भी निकाल ली थी उन्होंने कि आने ही नहीं देंगे इधर, बर्लिन के बीचों बीच ऐसा कुछ हुआ था. तो बर्लिन की वॉल के बारे में आपको आज ये वीडियो देखना चाहिए और आप में से किसी को अच्छा सा मिल जाए तो ग्रुप में भी शेयर करना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज के साथ वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा. नहीं तो आपको लगेगा बॉल गिर गई, छत गिर गई, शायद उस तरह का फील आएगा. सो देर इज वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ जर्मनी. सो 11 Jahre später war Weimar Kulturhauptstadt. So first cultural city of Germany was Berlin. First cultural city. हर अलग अलग कंट्रीज से सेलेक्ट करते हैं तो बर्लिन को किया गया था जर्मनी में पहली बार. That was in 1988. You can also see here. Maybe Berlin. ईयर नहीं लिख रखा. ओके, किसी किसी का लिखा हुआ है बर्लिन का, इनका जर्मनी वालों का नहीं लिखा हुआ. ओके, बट इनका यहाँ लिख दिया उन्होंने. सो Berlin was in 1988. 11 Jahre später, after 11 years, war Weimar Kulturstadt. Weimar is also a small city of Germany. So it was then first small German city as a cultural Hauptstadt. The letzte deutsche Kulturhauptstadt and third one and last one, अभी तक 3 को ही बनाया है. So third one was also special. While as eine ganze Region war, because पूरे रीजन को ही बना दिया कल्चरल सिटी. उसमें बहुत सारे सिटीज़ हैं. कितने सिटी हैं उसमें? उसमें 53 सिटी है एक रीजन में.
पूरे को ही बोल दिया ये पूरा एरिया ही कल्चरल सिटी है, कल्चरल रीजन ही बना दिया. एंड द नेम वाज गिवन रूर 2010 प्रोजेक्ट. Es gab über, okay, wer will das weiter lesen? Wer will lesen? Laut. Es gab über 500 Veranstaltungen. Ja, 5500, ja, 5500. Veranstaltungen und viele Kulturprojekte. Aber das tollste Erlebnis für mich war, dass es am 18. Juli 2010 für 31 Studenten keine Autos auf der Autobahn A40 gab. Auf der 60 Kilometer langen Strecke waren fast 20.000 Programme von Vereinen, Familien, Nachbarn und Institutionen. Stop. So here in 2010 the whole area was selected as the cultural city of Europe, cultural capital city of Europe. Es gab über 5500 Veranstaltungen. मतलब उस साल में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि पूरे एरिया को ही बना दिया. बहुत बढ़िया. सो 5500 प्रोग्राम कराए उस साल में इन्होंने. 5500 कराए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो. प्रोग्राम्स होंगे तो लोग आएंगे ना. तो किसी को कब टाइम है, किसी को कब टाइम है, तो रोज के ही उन्होंने 2, 5, 10 प्रोग्राम करा दिए कि रोज ही अलग अलग जगह पे हो रहे हैं प्रोग्राम, आओ आप तो. एंड द टॉलस्ट Erlebnis, and this person who is writing the text is saying the best experience for me was on 18th July 2010. Für 31 Stunden keine Autos auf der Autobahn A40 gab. पूरे हाईवे को ही रोक दिया गया. 31 आवर्स तक कोई हाईवे पे गाड़ी नहीं आएगी. प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सब लोग. कौन सेलिब्रेट कर रहा है? Auf der 60 Kilometer langen Strecke waren fast 20.000 Tische mit Programmen für Vereinen, Familien, Nachbarn und Institutionen. हाईवे पे लोग, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ फैमिलीज, पड़ोसी लोग अपने अपने फेस्टिवल मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसको वहाँ पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं. मतलब फेस्टिवल क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं. एंड दैट डे 20,000 टेबल्स लगाई गई थी, वो भी हाईवे पे ही, जगह जगह पे, एक ही जगह 20,000 नहीं. Ich war den ganzen Tag zu Fuß und auf der Autobahn unterwegs. वो 60 किलोमीटर का एरिया में रोक दिए गए थे, वाहन आ नहीं रहे थे. एंड आई वॉज ऑल डे ऑन फुट. मैं पैदल ही चल चल के देख रही थी प्रोग्राम्स. Viele Menschen kennengelernt und ich habe also viele Menschen kennengelernt, means many people I go to know that day. Besuchen Sie einmal eine Kulturhauptstadt. Sie is saying visit some cultural city, you will enjoy. Es lohnt sich, it's worth it. आपको अच्छा लगेगा. Jedes Jahr bewerben sich viele Städte every year. जिस bewerben है, देखो जिस bewerben, every year many cities apply for this title. कि भाई आप बताओ क्यों आपको बनाया जाए. तो सिटी, जो भी सिटी है वो कहेगा देखो इतने प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारी कल्चर है, इतने साफ सफाई से रहते हैं, आओ तो सही. सो दे अप्लाई फॉर दिस टाइटल while their title Kulturhauptstadt Vorteile bringt. And why they apply? Because it brings some benefits. अगर टाइटल मिलता है तो उसके बेनिफिट हैं. क्या बेनिफिट है? Geld von der Europäischen Union, यूरोपियन यूनियन से मनी मिलती है. उन viele Touristen, और टूरिस्ट आते हैं वो अलग, die Stadt besuchen, जो सिटी विजिट करते हैं. Bis 2018 stehen alle Kulturhauptstädte fest. 2018 तक के सारे कल्चरल सिटी तो पहले ही फेस्ट तय हो गए थे. Auch die Länder bis 2033 sind klar. 2033 तक के कंट्री पहले ही डिसाइड हो गए कि कौन से कंट्री का नंबर आएगा. कंट्री डिसाइड हो गए लेकिन अभी सिटी डिसाइड नहीं हुए हैं. जैसे ये पता चल गया कि इंडिया का लिया जाएगा इस बार, तो
तो अब इंडियन सिटीज में कंपटीशन रहेगा पूरे, है ना, तो आगे से आगे कि हमारा भी नंबर आ सकता है. सो दे विल ट्राई, देयर विल बी ए पॉजिटिव कंपटीशन among them. So wir haben ihnen auf den folgenden Seiten eine Reisetipp zusammengestellt. यूरोपियन, ये कल्चरल सिटी यूरोप के टूरिज्म को लेके आगे कुछ आने वाला है, ये कह रहे हैं, देखना आगे. So, das war es eigentlich. Wie finden Sie den Begriff? Zu Hause jetzt ein bisschen Aufgabe machen Sie. Das ist dann die Hausaufgabe. Seite 144. Kulturreise. Eindrücke gestern und heute. 3 Tage Weimar. So Weimar was also cultural city once. And this person, Musiker, he came to Weimar. So maybe he is writing a blog, his experience. Lesen Sie den Blog-Eintrag. Form. इसने ब्लॉग, अपने ब्लॉग पे लिखता है ये, तो इसने ब्लॉग लिखा है. तो ब्लॉग लिखते हैं तो हम लोग उल्टा पढ़ना है इसको, क्योंकि जो ब्लॉग में लिखते हैं वो चीज़ नीचे जाती है, फिर नया ऊपर आता है. सो इसने 12th को लिखा था, वो यहाँ आ गया, तो पहले ये पढ़ना है, फिर उसके बाद में ये लिखा है, फिर ये लिखा है. ब्लॉग में तो लेटेस्ट ऊपर आएगा ना. सो यू शुड रीड लाइक दिस एंड देन रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स vielleicht. Das könnt ihr. बस ट्विटर में भी हाँ, जो ऊपर होता है वो सबसे नया वो चला जाता है. And then maybe here these cities, this city is Weimar only. Yes. So what are the important places in Weimar? Weimar is a very small city in Germany, in the middle of Germany, near in Thüringen. Thüringen is the state. Thüringen state Germany के सेंटर में, उसमें एक छोटा सा सिटी है वाइमार. पॉपुलेशन भी बहुत कम है, पीसफुल. 1 घंटे में पूरे सिटी को आप घूम भी सकते हो, राइट. मैं भी घूमा हूँ उसमें. सो इतना वेल प्लान्ड, अच्छा लगेगा आपको. उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको आजकल तो नेट पे लाइव लोकेशन भी दिखती है ना, लाइव व्यू दिखता है, घूमते रहते हैं. दिखता है उसमें. तो उसका लिंक भेजना ग्रुप में मे बी. सो आपको ये सब दिखेगा कि कितना व्यवस्थित कोई सिटी हो सकता है और कितने सारे मोन्यूमेंट्स. ग्योटे, सीलर, ये जर्मनी के टॉप राइटर्स हुए हैं, है ना. ग्योटे ऑल टाइम ग्रेट पर्सन, उसको मानते हैं वो लोग, है भी. सो उसने भी वहाँ रह के बहुत काम किया था, है ना. शिलर एक दूसरा बहुत महानतम में से है. गोथे और शिलर, वो दोनों वहाँ रह के उन्होंने काफ़ी काम किया राइटिंग्स का, है ना. सो उनके भी मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे. सो यू हैव टू जस्ट सी. लिंक भेज दोगे तो लोग इजीली देख लेंगे. कई लोग क्या है कि आलस रहता है, कौन ढूंढे ये है, लेकिन एक कोई शेयर कर दे तो बाकी लोग देखते हैं ना. यही फायदा ग्रुप का है. सो शेयर दिस लिंक एंड देन यू विल सी ऑल दीज ब्यूटीफुल प्लेसेस. या das ist die Hausaufgabe denn. Und worüber sprechen wir morgen? Sprechen wir über das Weimar? Okay, das ist die Hausaufgabe. कल, हाँ, कल का एक काम करेंगे हम लोग स्पोकन का. जो हमारा स्टाम्टिश का टॉपिक होगा आज, वो आपका कल यहाँ पे बोलने का भी टॉपिक होगा. ओके, मे बी आई विल टेक वेरी सिंपल टॉपिक आज सुनेंगे, कल बोलेंगे ना. जो एडवांस में कल के लिए दिया जाएगा, उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे. तो कल जो सुबह बोलेंगे हम वही शाम को बोलेंगे. यस, शाम को क्या? ja, klar. Haben Sie verstanden, was die Hausaufgabe ist? Ist das klar?